gospel, oh Lord, is the hope for our nation. You are the Lord. It's the power of God for our salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. You are the Lord. And for our inheritance gave us the lost. You are the Lord. Send your power, oh, our God. Send your power, oh Lord, our God. Send your power, send it upon me, oh Lord, our God. Our God, He is the Lord. He is the Lord. He reigns on high. He is the Lord. Spoke into darkness, created the light. He is the Lord. Who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord. And He comes in power when we call on His name. He is the Lord. Send your power, send your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our God. Send your power, oh Lord, our God, our God. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, your love. तू प्यार का दरिया है, तेरे बूंद के प्यासे हम, कहीं बढ़ते कदम नहीं रुकने के हम, तेरे साथ चलेंगे हम। प्यार का दरिया है, तेरे बूंद के प्यासे हम, कहीं बढ़ते कदम नहीं रुकने के हम, तेरे साथ चलेंगे हम।
इंग्लिश में हम गीत को गाते हैं, सिंग देम ओवर अगेन टू मी, वंडरफुल वर्ड्स ऑफ लाइफ। उस खूबसूरत जीवन के वचन को प्रभु मुझसे बोल, और जब भी वो वचन मैं पढ़ता हूं प्रभु तुझको महसूस कर सकता हूं। वो वचन होने दे आज सुबह हमारे जीवन के ऊपर हुकूमत करे। Sing them over again to me, wonderful words of life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and faith and duty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. जावे किसके पास घूरेगा यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। शीश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। बख्शिश जी राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। जो भी प्रभु यीशु के पास आया है वो कभी खाली लौट कर नहीं गया है। आज सुबह हम क्यों न अपने आप को उस प्रभु के सन्मुख ले आए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हम उस प्रभु के पास आए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा
Ageless one, you are the rock of my peace, Lord of all. I depend on you. I called unto you again and again. I called unto you again and again. For you're my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you, for you're my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. तुझ सा इस जहान में प्रभु कोई है नहीं, परमेश्वर है। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में जीवन मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। तुझ सा इस जहां
Glory to Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने अपनी सिंहासन को हमारे बीच में बनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। Lord, you have honored us with your presence, O God, and we thank you for that, O God. We worship you not just for what you have done, O God, but for who you are, O God. We thank you and we praise you. प्रभु धन्यवाद देते हैं. We cry out with angelic host, holy, 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 holy is Lord God Almighty, who was and is to come. Holy is the Lamb of God who was slain for the sins of this world. Lord, we thank you and who liveth forever and ever. Thank you, Lord Jesus, for your resurrection, O God. Lord, we thank you and we praise you. We glorify your name, Lord. Lord, you receive glory, O God. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद है. तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. तू महिमा के योग्य है प्रभु जी, तू आदर के योग्य है प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं. हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं. महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया है. इसके लिए धन्यवाद देते हैं महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में है प्रभु जी. तू चल और फिर रहा है हमारे बीच में, हमारे मनों से बात किया है. हमारे हर एक ज़रूरतों को तूने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है. इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी. हमारे मनोरथों को हमारे बोलने से पहले तू जानता है महान जीवित परमेश्वर प्रभु जी. इस समय हम सब अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित करते तेरे सम्मुख प्रभु जी. तेरा वचन जब आता है जो धारी तलवार है प्रभु जी. प्रभु जी हमसे बात कर, हमसे हमारी सुधि ले प्रभु जी. होने दे कि तेरी नाम की महिमा होने पाए वचन के द्वारा. आज तू उठाया जाए प्रभु जी और उस पर हम मनन करने पाए प्रभु जी रात और दिन, जब तक कि तेरी वचन हम में घर न बना ले प्रभु जी. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं. अपने दुगनी अभिषेक से पसमान को, अब ब्रदर को जो ट्रांसलेट करते हैं वो अब भर दे प्रभु जी, कि तेरा वचन सामर्थ्य से जाए, हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु जी. एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन, आमीन. Continue to pray for those who are sick, जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहें. especially Mrs. James, खास करके मिसेस जेम्स के लिए, who has fractured her hand, जिनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, and others also, और अन्य Mr. लोग भी. Brother Jonkar also. जोनकर के लिए भी प्रार्थना करें. Also we have a prayer request here for Nikita Mishra. यहाँ पर एक प्रार्थना का निवेदन निकिता मिश्रा के लिए है. She is facing complications due to swelling in her placenta जिन्हें प्लेसेंटा में स्वेलिंग को लेकर कॉम्प्लिकेशन है and is affecting the baby to get enough oxygen. और जिसके कारण जो गर्भ में बच्चा है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है. Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है. Amen. आमेन. Days of miracles are not over. चमत्कार के दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं. Just the other time, during the wedding time, some non-Christians were there invited. और जो बीते दिनों विवाह हुआ उसमें कुछ गैर मसीही लोग भी वहाँ पर आए हुए थे. And we just met them and they said we found it very nice. और उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हमें बहुत ही अच्छा लगा. One of them said like this. और उनमें से एक ने इस प्रकार से कहा, When the church was being built, my son was very sick. जब ये चर्च बन रहा था तब मेरा बेटा बहुत बीमार था. He says, I am staying just behind the church. और उसने कहा मेरा घर ये चर्च के पीछे ही है. And I brought the child here. तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ लेकर आया था. From that day, he is perfectly all right. और उस दिन से वो पूरी तरह से स्वस्थ है. Amen. आमीन.
This is the testimony of people who are not here. ये उन लोगों की गवाही है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। Amen. आमीन। And one policeman on duty, और एक पुलिस वाला भी जो ड्यूटी में था, somebody said, let me come and introduce you to the pastor. और किसी ने उनसे कहा कि आइए मैं आपको मिलाता हूँ पासवान से। He says, I know them. तो उसने कहा कि मैं उनको जानता हूँ। He says, I had met with an accident and I was dying. और उसने बताया कि मेरा एक बार दुर्घटना हो गया था और मैं मरने वाला था, A severe head injury. और मेरे सिर में गंभीर चोटें आई थी। I remember he used to come here. और मुझे भी याद है कि वो व्यक्ति यहाँ पर आए करते थे। He says, I have a testimony to give to the church that I am healed. और उसने कहा कि मेरे पास एक गवाही है चर्च को बताने के लिए कि मैं पूरी तरह से चंगा हो गया। Amen. आमीन। People have come and experienced the power of God. लोगों ने यहाँ पर आकर परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया है। And if we come to receive, we will be blessed. और यदि हम यहाँ पर प्रभु से ग्रहण करने के लिए आएंगे तब हम आशीषित होंगे। Amen. आमीन। We are beginning to learn from people who say, I receive it. और हम उन लोगों से सीख रहे हैं जो कहते हैं वचन के बीच में कि मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव इट। Amen. आमीन। So this lady has sent this request. और ये बहन ने इस निवेदन को दिया है। Believe God will do a miracle. हम सभी विश्वास करें कि परमेश्वर इस बहन के जीवन में चमत्कार करे। Let's pray for this Nikita Mishra. आइए अभी हम निकिता मिश्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, matchless name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में With great faith, this request has come. बड़े विश्वास के साथ ये निवेदन यहाँ पर आया है। We pray for Nikita Mishra right now. हम बहन निकिता मिश्रा के लिए अभी प्रार्थना करते हैं। In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में all that swelling inside, वो तमाम जो सूजन उनके शरीर के अंदर है, in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में shall be broken. वो पूरी तौर से टूट जाए। In Jesus' mighty name, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में be broken in the mighty name of Jesus. तमाम शैतान के बंधन टूट जाने पाए That baby will be secure in the womb. और उसके गर्भ का वो बच्चा पूरी तौर से सुरक्षित किया जाए। Demons, take your hands off that child. दुष्ट आत्मा उस बच्चे के ऊपर से अपने हाथ को हटा। You spirit of infirmity, leave her body. दुर्बलता की आत्मा उस बहन के जीवन को अभी छोड़। Be healed in Jesus' mighty name. चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, God, for touching and healing. धन्यवाद परमेश्वर उस बहन को छूने और चंगाई देने के लिए। Pray for Mr. Jonkar also, Lord. इस जोनकर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Heal him, O God. प्रभु उस भाई को चंगा कर। Mrs. James, we pray for. मिसेस जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Restore her back to प्रभु normal. उनके स्वास्थ्य को वापस लौटा दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Everybody say, हर एक जन कहे Amen. 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 We are coming close to the close of this year also. हम जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम इस साल के भी करीब अंत के करीब आ रहे हैं। November. नवंबर माह शुरू हो गया। Just for a moment, sit down and think what we have done for God. एक पल के लिए यदि हम बैठकर सोचें कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा it is His desire that others should come to know Him. ये उसकी इच्छा है कि दूसरे भी उसे जाने And only they can know Him when we tell them. और वे तभी जान पाएंगे जब हम उन्हें बताएंगे। We can pray, हम प्रार्थना कर सकते हैं but to tell and to speak will bring forth fruit. परंतु जाकर बताने से वहाँ पर प्रतिफल फल मिलता है। Amen. आमीन। We don't have to be perfect to share a testimony. अपनी गवाही को किसी को देने के लिए हमें सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है। We can say like the blind man हम अंधे आदमी जिसने चंगा हो गया कहता है, who was healed. जो चंगा हो गया उसके समान कह सकते हैं। I don't know about your arguments, he said. मैं तुम जो तमाम तर्क प्रस्तुत कर रहे हो ये सब तो मैं नहीं समझता हूँ। One thing I know, एक बात जरूर जानता हूँ I was blind. कि मैं कल तक अंधा था Now I can see. लेकिन अब मैं पूरा देख सकता हूँ। Hallelujah. आमीन।
We have a testimony to give. हमारे पास एक गवाही है लोगों को देने के लिए I'm only a sinner, कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ saved by grace. जिसे अनुग्रह ने बचा This लिया। is my story. मेरे जीवन की कथा ये To है, God be the glory. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। I'm only a sinner, मैं केवल एक पापी हूँ, saved by grace. अनुग्रह ने जिसे बचा लिया। That grace has saved us. उस अनुग्रह ने हमें बचाया है, Grace has brought us through. उस अनुग्रह ने यहाँ तक पहुँचाया है Grace will take us through. और वही अनुग्रह हमें आगे भी ले जाएगा। Amen. आमेन। Remember, एक बात याद रखो, not by good works of righteousness. धार्मिकता के अच्छे कर्मों के द्वारा हम नहीं बचते हैं। Some people think that they are born in a Christian family, so they have a passport to heaven. कुछ लोग जो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं वो सोचते हैं कि चूंकि वो ऐसे परिवार में पैदा हुए इसलिए स्वर्ग उनका है या उन्हें मिल जाएगा। No, नहीं, that's absolutely wrong. ये पूरी तरह से गलत सिद्धांत है। Just being born with a Christian name but doesn't save your soul. एक मसीही नाम से दुनिया में पैदा होने से आपका प्राण उद्धार नहीं पाता है। You must be born again. सभी को उद्धार पाना, नया जन्म पाना जरूरी है। Amen. आमेन। Church attendance doesn't take anybody to heaven. चर्च में उपस्थिति देने से स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं। It is good that we come अच्छी बात है प्रभु के घर में रोज आना and to worship God. और परमेश्वर की उपासना करना भी अच्छा है, But it is our faith that saves us. परंतु वो हमारा विश्वास है जो हमें बचाता है। Amen. आमेन। We keep telling people, change your life, change your life. हम लोगों से कहते रहते अपने जीवन को बदलो, जीवन को बदलो, But if they change their belief, लेकिन यदि वो अपने विश्वास को, जो विश्वास वो कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएं, their life will be changed. उनका जीवन बदल जाएगा। Amen. आमेन। So they don't need instructions, they need to believe the word. उन्हें निर्देशों की जरूरत नहीं, उन्हें वचन पर विश्वास लाने की जरूरत है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Shall we turn our Bibles to Matthew's Gospel, 5th chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। This chapter we say the Sermon on the Mount. और इस अध्याय को हम पहाड़ी शिक्षा कहते हैं। Jesus called his disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। First verse says, and seeing the multitude, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. लिखा है पहली आयत में, जब वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और वो अपना मुंह खोल कर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are the merciful, they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are you when men shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for your reward in heaven. So persecuted they the prophets which were before you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था।
What a message. Yeah. What a teaching Jesus gave to his disciples. क्या ही उपदेश है जो यीशु अपने चेलों को और भीड़ को दे रहा था। They called it Beatitudes. और वे इस अध्याय को धन्य वचन कहते हैं। Some mention is about our attitude. कोई शायद हमारे आचरण से संबंधित हो। You know, after salvation, उद्धार के बाद we need to carry on to become more and more like Christ. हमें यीशु मसीह के समान और अधिक बनने की जरूरत है। Amen. आमीन। We say, when you're getting old, get old gracefully. और जब कहते हैं कि बुजुर्ग हो रहे हैं तो अनुग्रह के साथ बुजुर्गियत में चले बढ़े। Amen. आमीन। Not grumbling, mumbling all the time. कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते पूरे समय नहीं। That's the way we'll become. और वैसे ही हम बन जाएंगे। Be like Christ. मसीह यीशु के समान बने। Change from glory to glory. महिमा से महिमा में बदलते जाएं। All of us need a personal change. हम सभी को एक व्यक्तिगत परिवर्तन की आवश्यकता है। And all these portion which we read just now, ये सारा भाग जो अभी अभी हमने पढ़ा, it's how we react to things. ये बताता है हम परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये बताता है। Blessed are the poor, those who show mercy. धन्य है जो कि मन के दीन है, धन्य है वे जो दया दिखाते हैं। And so, what is our attitude? हमारा आचरण तब क्या है? And but we won't be dwelling in all these verses. हम तमाम इन आयतों में अभी नहीं जाएंगे, But some which relate to us, परंतु कुछ all of them relate to us. But these two verses we'll see. परंतु दो आयतों को हम देखेंगे। It says in verse 10, 10वीं आयत में कहता है, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are you when men shall revile you, that is, criticize someone in a scornful and abusive way. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, अर्थात किसी का ठट्ठा उड़ाते हुए उसकी आलोचना या बुराई करना, And say all manner of evil against you falsely for my name's sake. और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें मेरे नाम के कारण, मेरे कारण। Rejoice and be exceeding glad. तब आनंदित और मगन होना, Great is your reward क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। in heaven. स्वर्ग में। Hallelujah. हालेलुया। You know, we should never think हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए that if we live a righteous life, there will be no suffering and no opposition. कि यदि हम धार्मिकता का जीवन जिए तो वहां पर कोई सताव नहीं आएगा और कोई दुख नहीं आएगा। You should never think we will not have enemies or people who disagree with you. और हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे तो लोग हमारे साथ असहमत नहीं होंगे। Instead, we must tell people that we have to take up the cross and follow. परंतु हमें लोगों से बताना है कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना अवश्य है। There will be problems because of our faith. हमारे विश्वास के कारण वहां पर समस्याएं, तकलीफ आएंगी। Because of our righteous living, we will have problems. हमारे धार्मिकता के जीवन के कारण वहां पर तकलीफ होंगे। I used to think, मैं ऐसा सोचता था if you don't trouble the devil, he will not trouble you. कि शैतान से कुछ लेना देना मत रखो, उसे मत सताओ, वो भी हमें नहीं सताएगा। Like we say, पंगा नहीं लेंगे उससे. शैतान से पंगा नहीं लेना, So he won't do anything. वो भी मैं सोचता कुछ नहीं करेगा। But Satan is not a gentleman. लेकिन शैतान कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है। You can see the suffering in the world. आप चारों तरफ दुनिया में जो पीड़ा है उसको देख सकते हैं। Small innocent babies suffer. छोटे छोटे बच्चे भी पीड़ा में हैं। People who are very innocent, they are suffering. लोग बिल्कुल मासूम बड़े दुख में हैं। Why? क्यों? Devil is no respecter of any man. शैतान किसी भी मनुष्य का सम्मान नहीं करता। Jesus said he's a thief यीशु ने बताया कि वो चोर है and he's a murderer. और वो हत्यारा है। He's always wanting to cause somebody to suffer. वो हमेशा प्रयास करता
किसी न किसी इंसान को तकलीफ और पीड़ा दे। Now Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं, now since you have become mine, चूंकि अब तुम मेरे हो गए हो। he's called his disciples. उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। He's not telling the crowd, he's telling the disciples. वो अब भीड़ को नहीं, अपने चेलों से कुछ कह रहा है। He's saying, listen, वो कह रहा, सुनो, if they have persecuted me, they will persecute you also. यदि उन्होंने मुझको सताया है, वे तुमको भी सताएंगे। If they have spoken evil about me, they will speak evil about उन्होंने you. मेरे विषय में बुराई की है, तो तुम्हारे विषय में भी बुराई होगी। Who was more perfect than Jesus Christ? यीशु मसीह से बढ़कर सिद्ध व्यक्ति और कौन था? He was a perfect man. वो तो एक सिद्ध परमेश्वर था। He lived a righteous life. धार्मिकता का जीवन जी रहा था। Amen. Amen. His enemies spoke well of him. यहाँ तक कि उसके शत्रु भी उसकी बड़ाई करते थे। Like the thief on the cross said, चोर जो क्रूस में लटका था, वो भी कहता है, we are receiving our own punishment because of our bad deeds. हमने तो जो पाप किया, अपराध किया, उसकी हम सजा काट रहे हैं। This man परंतु ये बगल वाला has आदमी, done nothing amiss. इसने कुछ भी अपराध नहीं किया है। These are not his disciples. और ये बोलने वाले लोग यीशु के चेले नहीं थे। No. नहीं, They just known his life. केवल उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को दूर से देखा था। The centurion standing there said, वहां नीचे खड़ा सिपाही सूबेदार बोलता when he है, saw Jesus dying, जब उसने यीशु को ऐसे मरते he देखा, said, truly he's a righteous man. कहता सचमुच ये आदमी धर्मी इंसान था। He's the Son of God. ये निश्चय परमेश्वर का बेटा ही है। Pilate said, I find no fault. पिलातुस हकीम ने कहा, मुझे इस यीशु में कोई भी अपराध नहीं दिखता। Judas said, यहूदा कहता I है, have betrayed innocent blood. मैंने एक निर्दोष मनुष्य को पकड़वा दिया। Demons said, दुष्टात्माओं ने बोला, what have we to do with thee, thou holy Son of God? हे परमेश्वर के पवित्र जन, हमें तुझसे क्या काम। Righteous man. धर्मी मनुष्य था। Remember one thing, एक बात को याद रखें, all our good works cannot attain to the righteousness which God wants us to have. हमारे सारे भले काम उस धार्मिकता को हासिल नहीं कर पाएंगे जो यीशु की है। We are righteous because of Christ in us. हम धर्मी मसीह जो हमारे अंदर है उसके कारण है। Amen. आमीन। That is grace of God. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। He who knew no sin became sin. वो जो पाप को पहचानता भी नहीं था, वो पाप ठहरा दिया गया। What grace. क्या अनुग्रह। While we were yet in sins, Christ died. जब हम पाप ही में थे, ऐसे समय यीशु हमारे लिए मारा गया। Jesus' righteousness doesn't increase and doesn't decrease. यीशु मसीह की धार्मिकता कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। Amen. आमीन। We become the righteousness of God when we believe in Christ. हम मसीह की धार्मिकता बन जाते जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। You know, we cannot take that आप जानते हम इसे ले नहीं सकते, because we like to listen to the devil always accusing us. क्योंकि हर समय हम शैतान को सुनते हैं, वो दोष लगाते रहता है। And we might accuse one another also. हम भी एक दूसरे को दोष लगा सकते हैं। Husband tell the wife and wife tell the husband. पति पत्नी को और पत्नी पति को। बड़ा चर्च गए, हाथ उठा के गाना गाए, क्या तमाशा कर। और चर्च गए, हाथ उठाकर आराधना किए, क्या बात है। And now, और अब showing a temper, आप गुस्सा दिखा रहे हो, tell them, उनसे कहें, I am what I am because of the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह Amen. के कारण जो हूँ वो हूँ। Amen. आमीन। Your flesh is not the one who should rule, it's the spirit. आपका शरीर नहीं जिसे राज करना चाहिए, परंतु आत्मा को हमारे ऊपर राज करना चाहिए। Anyway, this accusation ये जो आरोप है comes from the devil. शैतान की ओर से आता है। The devil is known as the accuser of the brethren, शैतान का नाम है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला, not the world. दुनिया पे नहीं। You tell something to a person in the world, he will come and fight with you. दुनिया में यदि आप किसी को कुछ कहें तो वो लड़ने के लिए आ जाएगा। You tell a child of God, he just keeps quiet. आप परमेश्वर के जन को कहते, वो शांत रहता है। Don't think because he's weak. ये ना सोचे कि वो कमजोर है। Jesus Christ was not a weak man, यीशु मसीह कमजोर मनुष्य बिल्कुल नहीं था, but he did not react. परंतु उसने वैसी प्रतिक्रिया नहीं की। He was always in
harmony with God. वो तो हमेशा परमेश्वर के साथ एक मन का था। Hallelujah. आमीन। So Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे, blessed are you तुम धन्य हो when people persecute you जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताएं, for righteousness' sake. धार्मिकता के कारण, Because you are trying to live a righteous life, क्योंकि तुम एक सही और धर्मी जीवन जीने का यत्न कर रहे हो। that's unimaginable. ये हमारी कल्पना से बाहर है प्रियो। Why should anybody trouble a person who is living right? क्यों कोई भी जन ऐसे जन को सताए जो सही सही चल रहा है? Because of your faith in Christ. आपका विश्वास जो यीशु मसीह में, उसके कारण There is hatred for in the hearts of people. लोगों के मन में आपके लिए नफरत है। And yet God wants us to do good in this और world. तो भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि संसार में हम भलाई करें। Amen. Amen. Education system. यहाँ जो शिक्षा, जो पद्धतियां हैं, Who brought it here? दुनिया में कौन उसको लेकर आया? Believers, Christians. विश्वासी लोग लेकर आए। Mission schools. मिशन स्कूल्स ने लोगों को शिक्षा दी है। Mission hospitals were open. मिशन हॉस्पिटल इलाज के लिए खोले गए। All the good you do. सब जो भला आप करते हैं, The orphanages were open. अनाथ आश्रमों को खोले गए Widows' homes were open. और विधवाओं के लिए आश्रम बनाए गए। What's wrong? इन अच्छे कामों में बुराई क्या है? If you feed them, then there is a you doing it for some purpose. यदि आप उन्हें खिला रहे हैं तो कहते कि कोई उद्देश्य के लिए है। They can see them suffering. उनको लोग पीड़ा में पड़े देख सकते हैं, But if you go to help them, लेकिन यदि कोई मसीही उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाता है, they persecute them. वो उस मदद करने वाले को सताते हैं। Close down all orphanages. अनाथ आश्रमों को बंद कर दिए गए। Thousands of them are open. हजारों की संख्या में ये बंद हो गए। Children were बच्चे getting food and raiment and education. जहां भोजन, कपड़ा और पढ़ाई जहां मिल रही थी, They didn't like that. संसार को वो अच्छा नहीं लगा। Persecute you for righteousness' sake. आपको धार्मिकता के नाम में सताया जाता है। Amen. आमीन। Promotions are not given. तरक्कियां आपके कार्यालयों में आपको नहीं दी जाती है, You branded for your name. और आपको उस नाम के कारण, मसीह नाम के कारण उस पे छाप लगा दी गई। Why? क्यों ऐसा? Because you are the light of the world. क्योंकि आप जगत में ज्योति हैं, इसीलिए। Amen. Amen. Jesus said यीशु ने in the कहा, same chapter, इसी अध्याय में आगे going on further reading, आगे पढ़ते यदि हम Jesus said, You are the salt of this earth. यीशु ने कहा, इस जगत के तुम नमक हो। You are the preserving factor. इस दुनिया को संभालने और जिंदा रखने वाले तुम हो। The day the church goes, जिस दिन कलीसिया का स्वर्गारोहण हो जाएगा, what is going to happen in the world? इस संसार के अंदर क्या होने वाला है? You are the salt. तुम ही नमक हो। And then Jesus goes on to say, तब यीशु मसीह आगे बोलते, You are the light in this world. तुम इस जगत की ज्योति हो। You are my representative. तुम मेरे प्रतिनिधि You हो। are the one who reflects my light. तुम ही मेरी ज्योति को प्रतिबिंबित करते Let your light shine. इसलिए तुम्हारी ज्योति ऐसा चमके। Hallelujah. 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 Don't put it underneath. वो उस ज्योति को छुपाओ मत कहीं Let अंदर, it shine. उसे बाहर चमकने दो। What is this light? ये ज्योति क्या है? Light dispels darkness. ये ज्योति वो है जो संसार के अंधकार को दूर करती है। Amen. Amen. We had the motto in the school, स्कूल में एक शीर्षक था, dispelling darkness. अंधकार को दूर करना। Education शिक्षा ने brought in a lot of enlightenment in the hearts of people. लोगों के मन को प्रकाशमान किया है। Amen. Amen. Medical science मेडिकल साइंस जब आया, has relieved people of the pain लोगों की पीड़ाओं को उसने कम कर दिया, because God gave them wisdom. क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को ऐसी बुद्धि दी। We are not serving for money. हम पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहे,
We are serving because God called us to serve Him. हम इसीलिए कर रहे हैं Amen. क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है Hallelujah. सेवा के लिए। Wherever you are working in your office, आप लोग जहाँ कहीं भी जिस ऑफिस में काम कर रहे Hospital, हैं, अस्पताल में काम कर रहे हैं, school, स्कूल में, whichever department you might be there, कोई भी डिपार्टमेंट में आप यदि काम कर रहे हैं, God has placed you as His representative. परमेश्वर ने आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen. That's the first priority. ये पहली प्राथमिकता But you will है। say, because of me, I'm persecuted because of my faith. आप कहेंगे मेरे विश्वास के कारण मैं सताया जाता हूँ। Blessed are you धन्य हो तुम when men shall revile you. जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। Light has come, जगत में ज्योति आई है darkness did not comprehend it. और अंधकार उस ज्योति को पसंद नहीं किया। Jesus said those words. ये वचन यीशु के हैं। Light has come ज्योति आई to expose the works of darkness. अंधकार के कामों को प्रकट करने के लिए। That's why they don't like you. इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते। You don't drink. आप नशा नहीं करते, You don't abuse. आप गाली नहीं बकते, You don't rob. आप चोरी नहीं करते, You don't take bribes. आप घूस नहीं लेते। They don't like that. उनको ये सब बातें, आपकी अच्छाई पसंद नहीं है। They want you to be like them. वो चाहते हैं कि आप भी उनके समान बिगड़े रहे। आप भी खाओ, हम भी खाएं. आप भी खाओ, हम भी खाएं। ऊपरी कमाई नीचे से. ऊपरी कमाई जो नीचे से, Bribery. घूस। This country is being defamed by this thing. हमारे देश का अपमान इन गलत कामों के कारण हो रहा। Some countries don't know what is bribery. ऐसे भी दुनिया में देश है जहां घूस लेना वो जानते भी नहीं। They don't know what is tip. उनको ये भी नहीं मालूम टिप भी दिया जाता है। But in the midst of darkness, परंतु अंधकार के इस बीच में you shine. आप चमकिए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। The greater the darkness, जितना ज्यादा अंधकार है, even a small light from your mobile phone आपके मोबाइल का छोटा सा रोशनी भी can enlighten that place. पूरे स्थान को जगमगा देता है। Let your light shine. ऐसे ही आपके जीवन की ज्योति चमकने पाए। Amen. आमीन। Blessed are you धन्य हो तुम when men shall revile you जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे for no reason. बिना कारण के। It's not that we had a fight so that you talk. और ऐसा नहीं कि हमारा झगड़ा हुआ इसीलिए वो निंदा कर You रहे हैं। begin to wonder why. What happened? आप सोचने लगते कि क्या हो गया, क्या हो रहा है। Revile you. लोग तुम्हारी निंदा करते। And I was reading the dictionary. मैं शब्दकोश डिक्शनरी में पढ़ रहा था। Criticize someone किस- scornfully. किसी की कठोरता से आलोचना करना, In an abusive way. एक अपमान करने के तरीके में, Speaks in such a manner किसी ऐसे तरीके से बात करते लोग that person will feel small. ताकि वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करे। But remember one thing. परंतु एक बात को भूलना नहीं, You are not small. हम छोटे नहीं हैं। Greater is He who is in you. वो जो हमारे अंदर है वो बहुत महान है। Hallelujah. Hallelujah. Than He that is in the world. उससे भी बढ़कर जो कि संसार में है। Tell the devil. शैतान से कह दे, You might say many things. तू बहुत सी चीज बोल सकता है। Criticize you in a scornful and abusive way. आपको वो तुच्छ जानते हुए कठोरता से अपमानित करता है, आलोचना करता है। Say all manner of evil against you falsely for my sake. और सब प्रकार की बुरी बात तुम्हारे विरोध में मेरे कारण कहता है। All manner of evil. सब प्रकार की बुरी बातें। Some people don't allow them to spoil your peace. कुछ लोग उनको अनुमति नहीं देते कि वो आपकी शांति को बिगाड़े, Or throw the garbage into your home and to your mind. और अनुमति नहीं देते कि वो आपके Don't मन give में them the place. वो कचड़ों को फेंकने का उन्हें जगह ना दें।
Amen. आमेन। Oh, what do you think of that person? I know them. अरे उनको आप क्या जानते हो? मैं उनको जानता हूँ। 30 years I know. 30 साल से जानता हूँ। As if God will take account from him that day. जैसे परमेश्वर उस What दिन, that person said, you tell me. उस व्यक्ति ने क्या कहा था बताओ? Every man shall give an account of his own self. हर मनुष्य अपने स्वयं का लेखा देगा। Amen. Amen. How careful we have to be. कि हमें कितना सावधान इसलिए होना चाहिए। Don't say amen to that fellow also. ऐसे लोगों को आमीन भी मत बोलिए। Amen. आमीन। Say all manner of things against you false. सब प्रकार की बुरी बात तुम्हारे विरोध में कहते हैं। Now what we have to do? अब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? आमना सामना कर लेते हैं। आमना सामना करो। आ जाओ हम लोग। आप भी आ जाओ। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। तुम भी सुनो। आप भी सुनो। That has happened from the beginning of the world. इस जगत के आरंभ से ही लोगों ने ऐसे ही किया है। Nothing is solved. लेकिन कुछ भी हल अब तक नहीं निकला। But when the Holy Ghost works, लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है, listen, church is His body. सुनिए, कलीसिया मसीह की देह है। We got to wait on the head to work. हमें उस सिर का इंतजार Amen. करना है कि वो निर्देश दे के काम करे। Hallelujah. आमेन। We can mess up things. हम अपने में चीजें गड़बड़ा सकते हैं। He's saying how to react. वो कह रहा कैसे प्रतिक्रिया देना है। मूड में आ गए. जब कोई विरोध करे तो मूड में आ गए। This fellow said like this, that then they wrote all that thing about me. उसने मेरे बारे में ये चीज लिख दिया। And we are angry. और हम नाराज हैं। We get angry. हम नाराज हो जाते हैं। But don't let your anger लेकिन तुम्हारा क्रोध overtake you. तुम्हें चलाने ना पाए। Amen. आमेन। When you are angry, जब आप क्रोधित होते हैं, don't write it down. क्रोध में Don't कोई- give any letter. क्रोध में कभी भी कुछ लिखना या पत्र मत देना। Wait. रुक जाओ। Amen. आमेन। No, just now we have to face them. नहीं, अभी मुझे अभी उसका सामना करना है। That's your flesh. ये आपका शरीर कह रहा है। You will mess it up. आप उस शरीर में जाएंगे तो आप चीजें बिगाड़ देंगे। Let God fight your battle. परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ने पाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because when you're angry, you get a lot of words and you can write very well, you know. क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको अच्छे अच्छे शब्द बड़े बड़े मिल जाते हैं। And English also, language has become so good nowadays. और इंग्लिश भी कितनी अच्छी हो गई अब। I had been contemplating on this. मैं इस पर विचार कर रहा था, मनन कर रहा था। And all those words. और तमाम बड़े बड़े शब्द क्रोध में हम लिखते हैं। Don't do that. क्रोध में ना करें। If you have not taken to the thing to the Lord in prayer, यदि पहले उस बात को प्रभु के पास नहीं ले गया है, don't take suggestion from anybody. तो किसी आदमी से सलाह भी मत लीजिए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God will direct your path. परमेश्वर तेरे मार्ग को दिशा देगा। Suffer? दुख उठाना, Yes, we have to. हाँ हमें दुख उठाना है। Amen. आमेन। It says rejoice. वो कहता आनंद मनाओ। What kind of reaction? कैसा प्रतिक्रिया है, विरोध। Just now they abused you. अभी अभी उन्होंने गाली बकी। They wrote certain things against अभी you. अभी उन्होंने एक बहुत बुरी बात लिखी। The best way सबसे अच्छा तरीका to है respond प्रतिक्रिया करने is का to obey God. परमेश्वर के वचन को माने, Rejoice आनंदित रहें and be exceeding glad. और बहुत मगन हो जाएं। अरे क्या तमाशा है. Great is your reward in heaven. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Amen. आमेन। And you're not just alone because they have done this to the prophets. और तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि ये काम उन्होंने इसके पहले भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी किया था। John's Gospel 16 chapter 30th verse 33rd verse says, यूहन्ना 16 और उसका 33 इस प्रकार से बोलता है, These things I have spoken unto you that you might have peace. In the world you will have tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है,
परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. Amen. आमेन। You might have peace ताकि तुम्हें शांति मिले in me, मुझ में, not outside of Christ. मेरे बाहर नहीं, मुझ में। Some people say, we're so troubled, no? So I saw one movie. कोई कहते कि मैं बहुत परेशान था तो मैं एक सिनेमा देखने लगा। अच्छा, बड़ा रिलीफ हुआ उसके बाद। जैसे कि उससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। In me you will have peace. यीशु ने कहा मुझ में तुम्हें शांति मिले। You will have trouble in the office, big fight, people shout, do all things. संसार में, ऑफिस में क्लेश होता, लोग चिल्लाते, विरोध करते हैं, Insult you, आपका अपमान करते हैं। rejoice. ऐसे समय में आनंदित और मगन होना, That will trouble them more. और ये तुम्हारा आनंदित होना उन्हें और परेशान करेगा। They want to see you depressed, वो आपको निराश देखना चाहते हैं, and you walk out rejoicing. और आप आनंद के साथ में बाहर बढ़ जाते हैं, That fellow will get mad. और वो व्यक्ति पागल जैसे हो जाएगा। Amen. Amen. Just now I spoke Sanskrit, Latin, अभी अभी मैंने कोई अपशब्द मैंने इस व्यक्ति को कहा, but they're so happy, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। exceeding glad. आनंदित, अति मगन। अति मगन हो गया। आमीन। कैसे मगन ब्रदर? कैसे मगन है? वो गाली दिया था, ओह, क्यों मगन हो? वो गाली दिया था इसलिए बहुत मगन हूँ, खूब हंस रहे हैं। खूब आनंदित है। क्यों? क्यों? उसने भी गाली दिया है, उसने भी गाली दिया, उसने भी दिया गाली। उसने भी दिया, सब दिए, इसलिए आनंदित हूँ। They will get mad. वो लोग समझ नहीं पाएंगे। Amen. आमीन। Tribulation सताओ, in this world you will have. इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, Be of good cheer. परंतु ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। 1 Thessalonians 3rd chapter. पहला थिस्सलुनीकियों और 3रा अध्याय। It says that no man, of 3rd and 4th verse, 3री और 4थी आयत, that no man should be moved by these afflictions, for you know that we are appointed thereunto. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। For verily when we were with you, we told you before that you should suffer tribulation even as it came to pass, and you know. क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। Amen. आमीन। We reminded you, हमने तुम्हें पहले ही कहा था, this faith will have some trouble. इस विश्वास के कारण कुछ संकट आने वाला है। Thank God for good prophecies प्रभु का धन्यवाद हो भविष्यवाणियों के लिए, and spirit-filled prophecies. आत्मा से भरे हुए भविष्यद्वक्ताओं के लिए। But there is something in the word also. परंतु वचन में कुछ और बात भी है। Don't promise anybody very carefree life. कि किसी भी व्यक्ति को बहुत आराम की जिंदगी रहेगी ऐसा वायदा मत करो। Already with Christ it is carefree. मसीह के साथ हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं, Because he says, cast all your burden upon me. क्योंकि उसने कहा अपनी सारी चिंता का बोझ मुझ पर डाल दो, I care for you. मुझे तुम्हारा फिक्र है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All your care अपने सब पूरे चिंता for your children, for your future, for whatever. बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर Cast it सब डाल दो on me. मुझ पर। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I care for you. क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है, यीशु कहता है। हालेलुया। You know, it is a privilege to be God's, but we have to also know that we are called to suffer for His sake. आप जानते हैं कि ये सौभाग्य है प्रभु के पास होना, लेकिन साथ में हमें दुख भी उठाना ये होगा। Philippians 1st chapter, फिलिपियों का पहला अध्याय 29th verse says, उसका 29 आयत कहता है, For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake.
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। Amen. आमीन। For his sake, उसके कारण। Romans 8 chapter, रोमी 8 अध्याय 17th verse. 17 आयत। And if you are children of God, then heirs of God, joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। Hallelujah. आमीन। Sorrow has come, God sends upon those whom he can trust. परमेश्वर उन्हीं के ऊपर में दुख भेजता जिनको वो भरोसा कर सकता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Because he wants to glorify them. क्योंकि वो महिमा देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God's name is glorified in your healing. परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है जब आपकी बीमारी से आप चंगे होते हैं। Amen. Amen. In your prosperity, आपकी तरक्की में उसकी महिमा होती है। all these things. ये तमाम चीजों में 2 Timothy 2nd chapter 12th verse says, दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 12 आयत कहती है, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। Very simple. बहुत ही आसान शब्दों में। Amen. Amen. आमीन। Amen. Amen. You know, God's righteousness is always bring forth glory. आप जानते परमेश्वर की धार्मिकता हमेशा महिमा को लेकर आती है। The path of the just is as a shining light. धर्मी का मार्ग एक चमकने वाले ज्योति के समान है, That shineth more and more unto a perfect day. जो एक सिद्ध दिन के समान और अधिक चमकता ही जाता है। Just man. धर्मी मनुष्य। Proverbs 4:18 I am reading. नीति वचन 4 और उसके 18 में लिखा The है, path of the just धर्मी का जो मार्ग है is as a shining light वो एक ज्योति के समान है, that shineth more and more unto a perfect day. जो एक सिद्ध दिन के लिए और अधिक चमकता चमकता जाता है। Amen. आमीन। Anyway, the man is blessed. किसी भी तरीके में मनुष्य परमेश्वर से प्रतिफल पाता है, Whether he is despised by the world, चाहे वो मन दुनिया के द्वारा तुच्छ जाना जाए, the unrighteous, जो अधर्मी लोग हैं, who is not right with God, जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है, will harbor bitterness and resentment, वो मन में कड़वाहट और विरोध रखेंगे for no reason at all. बिना कोई कारण के। Men shall say all manner of evil against you. मनुष्य हर प्रकार की बुराई करेंगे। Now, I trust you will read the Old Testament also. मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग पुराना नियम भी बाइबल में पढ़ते हैं। Read the Bible. बाइबल को पूरा पढ़ें। Very interesting book. बहुत ही रोचक किताब है ये। Amen. आमीन। If you're getting little tough in the epistles, go to some easier portions of it. यदि आप पौलुस की पत्रियों में आपको कठिन लग रहा है तो पुराने नियम के उन भागों में चले जाएं। Peter says certain thing Paul writes, it's very difficult to understand. और पतरस कहता है कि पौलुस के द्वारा लिखी कुछ चीजें समझने के लिए कठिन है। Now we understand them all. अब लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं। I will give you an example of David. मैं आपको दाऊद राजा का एक उदाहरण दूंगा, If you are all ready to listen. यदि आप तैयार हैं सुनने के लिए। तैयार हैं? Amen. Amen. आमीन। David was a man chosen after God's own heart. दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था। You know how Saul sought to kill him और आप जानते हैं कैसे शाऊल उसको मारने का यत्न करता था। after he was anointed.
उसका अभिषेक होने के बाद, after anointing, trouble starts. और अभिषेक के बाद में समस्याएं आरंभ हुई। As long as you're in the world, nothing happened. जब तक आप दुनिया के अंग थे, कोई तकलीफ नहीं थी। Now when you changed over, came to Christ, जैसे ही दुनिया छोड़कर यीशु के पास आए, trouble came. तो तकलीफ आने लगी, Because you become a target. क्योंकि अब आप निशाने में हैं। And so you see David was running all the time आप पाएंगे वैसे ही दाऊद भी यहाँ वहाँ भागता रहा, till the day he became king. जब तक के उस दिन वो राजा नहीं बन गया। He had 3 chances to kill Saul, दाऊद को 3 मौका मिला शाऊल को मारने का, but he did not kill him. लेकिन दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। Saul died in the hands of the Philistines. शाऊल फिलिस्तियों के हाथ में मारा गया। But there are some people of the tribe of Benjamin. परंतु बिन्यामीन के गोत्र के कुछ लोग ऐसे थे, Saul was from the tribe of Benjamin. और बिन्यामीन के गोत्र से ही शाऊल राजा आया था। And there were some people of the tribe of Benjamin who did not like David. और बिन्यामीन के गोत्र के कुछ लोग थे जो दाऊद को पसंद नहीं कर रहे थे। When he became king, जब वो राजा बन गया तब, so they were harboring bitterness in their heart. तब वो अपने हृदय में कठोरता को बनाए रखे थे। But now because he is king, परंतु अब चूंकि वो राजा बन गया था, they could not speak it out. वे लोग उसको बोल नहीं सकते They were थे। just living that life वे लोग वैसे ही रह रहे थे with bitterness. उस कड़वाहट के साथ। And one of them, और उनमें से एक, his name is Shimei. उसका नाम था सिमियन, Shimei. शिमी। If you turn with me to 2 Samuel, यदि दूसरा शमूएल हम देखें 16th chapter, 16 अध्याय 5th verse. उसकी 5वीं आयत। Read it. जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। Acha. Now listen. अब सुनिए, Just give you a little background. आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं। Are you ready here? आप सब लोग सुन रहे हैं? Amen. Yeah. Amen. Listen. What had happened? यहाँ क्या हुआ? David's own son, दाऊद का अपना बेटा Absalom, अबसलोम, he by his craftiness took over the throne. वो चालाकी से दाऊद राजा अपने पिता का सिंहासन ले लिया। He was very good looking. वो दिखने में सुंदर था, He was tall, बहुत ऊंचा था beautiful to look at. और अच्छा दिखने वाला नौजवान। Now David is getting old. अब दाऊद वृद्धावस्था की तरफ So he था। would stand at the gate and say, oh, my father no, nowadays cannot do that. अबसलोम वहां पर फाटक में खड़ा होकर लोगों का दुख सुनता था और कहता था, मेरे पिता तो वृद्ध हो गए हैं। He won the hearts of people. और ऐसा करके उसने लोगों का दिल जीत लिया। And now he had conspired a conspiracy to take over the kingdom. और अब उसने राज को अपने हाथ में लेने का योजना बनाई। When David came to know that people are with him, he ran. और जब दाऊद को पता चला कि जनता उसके बेटे के साथ है, तो दाऊद अपनी जान बचाकर भागा। He ran barefooted also, it says. और कहीं वो बिना पांव में जूतियों को पहनकर भी भागा। He was a warrior. वो एक योद्धा था, He was not afraid of things. वो चीजों से डरने वाला इंसान नहीं The था। situations had changed. परिस्थितियां लेकिन अब बदल गई थी। Now for the tribe of Benjamin, लेकिन बिन्यामीन के गोत्र के लिए, this is the day. उन लोगों के लिए ये अवसर था। Oh, so happy. वो इतने आनंदित हुए, Not all, सब नहीं, but this one fellow who is a wicked guy, परंतु ये एक दुष्ट मनुष्य था, and his name is mentioned, उसका नाम भी लिखा है, Shimei. How do you pronounce that in Hindi? हिंदी में शिमी लिखा है। And let's say Shimei only. शिमी ही हम कहते In हैं। English, ये आदमी, they say Shimei in English. इंग्लिश में शिमियाए ऐसा उच्चारण है। A Benjamite. बिन्यामीन का गोत्र का। When he came to know that Absalom is taken over, और जब उसे पता चला कि उसके बेटे अबशलोम ने राज्य ले लिया है, he got so happy. तो वो बहुत खुश हुआ। अच्छा बेटा, आज का दिन आ गया. आज का दिन आ गया है।
So as David is going, और जैसे दाऊद वहां से गुजर रहा था, now David is not alone. अब दाऊद अकेला भी नहीं था, He's got his troops with him. उसके साथ उसके साथी और पूरी फौज थी, His bodyguards are around him. उसके अंगरक्षक उसके साथ थे। These are valiant men. और ये पुरुष जो उसके साथ थे वो बहुत ही हिंसक योद्धा थे, Warriors. योद्धा थे, With their like lions. सिंह के समान तेज थे। But this man takes up courage. परंतु इन सब के बावजूद शिमी इतना हिम्मत करता है That he comes and stands where from where David will be crossing. वो उस रास्ते के पास आके खड़ा हो गया जहां से दाऊद अपने लोगों के इस भीड़ के साथ जाने वाला था। And listen what he says. और सुनिए क्या बोलता है। And he cursed still as he came. और शिमी उसको कोसता हुआ यूं बकता गया। Verse 6. 6वीं आयत। And he cast stones at David and at all the servants of King David. And all the people and all the mighty men were on his right hand and on his left hand. वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे, दोनों ओर थे। How low a person can go fall, I don't know. एक आदमी कितना निचले स्तर में गिर जाता है। Not only curse, न केवल वो कोस रहा था, throwing stones. परंतु अब पत्थर उठाकर उन पर फेंक रहा था। Aggravating situations परिस्थितियां for his own harm. He could have died there. अपने नुकसान को भी उठा सकता था क्योंकि वो मर सकता था, लेकिन परिस्थितियों को खराब कर रहा था। Are you there? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Now read this verse 7. अब आगे पढ़िए 7वीं आयत। And thus said Shimei when he cursed, come out, thou bloody man, thou man of blood, Belial. शिमी कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। Son of Belial. और He's बलियाल के पुत्र हिंदी में नहीं है। He's calling the anointed of God devil. परमेश्वर के अभिषिक्त जन को वो बलियाल का पुत्र भी कहता है। Cursed him, और कोसरा श्राप you bloody man. और कह रहा हे खूनी तू दूर हो जा। Man, you shedding blood. मतलब मनुष्य जो खून बहाता है। How low that man could go. कितना निचले स्तर पे मनुष्य गिर सकता है। 8th verse. 8वीं आयत। Then he uses the name of the Lord twice. और फिर वो यहोवा का नाम भी लेता है 2 बार। Some people are so righteous, they say, God told me. कुछ लोग इतने धर्मी हो जाते, ये कहने लग जाते परमेश्वर ने मुझसे ये कहा He है। thought he was doing this for God. उसे लगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है परमेश्वर के लिए कर रहा है। And the Lord has returned upon thee the blood of the house of Saul. वो कहता है यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया, In whose stead thou hast reigned. जिसके स्थान पर तू राजा बना है। And the Lord had delivered the kingdom into the hands of Absalom thy son. Behold, thou art taken in thy mischief, because thou art a bloody man. यहोवा ने राज को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। They will talk about you when something happens to you. वो आपके विरुद्ध में बातें करते हैं जब आपके जीवन में कुछ दुख आता है। Any circumstance will happen, they will give their opinion. कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, वे आपके बारे में बात करते हैं। Especially sickness. खास करके जब किसी पर बीमारी आई हो, Like the disciples. चेलों के समान। Who sinned? किसने पाप? This man or his parents sinned, that his man is born blind. इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने की अंधा जन्मा। Oh, somebody's disadvantage becomes our advantage. किसी का दुर्भाग्य हमारे लिए बात करने का सौभाग्य है।
Oh, he met with an accident. Something was wrong. अरे उसका दुर्घटना हो गया, जरूर उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है। Jesus said, यीशु ने कहा, neither has this man sinned, neither his father and mother. सुनो, ना तो इस मनुष्य ने कोई पाप किया है, ना इसके माता पिता ने कोई पाप, But the works of God shall be glorified. परंतु ये तकलीफ इस पर इसीलिए है Amen. कि परमेश्वर का काम इसके जीवन में प्रकट हो। Lazarus died. लाजर की मौत, Could not this man save him? क्या लोग ये पूछने लगे, क्या यीशु इनका दोस्त होकर भी उसको बचा नहीं पाया? They will always question. हमेशा लोगों के पास सवाल है, When you're up there, they will not talk well. When you're down there, they will come down. और जब आप वहाँ ऊपर है वो आपके भलाई की बात नहीं करेंगे, जब आप नीचे आएंगे तो भी वो आपकी बात But करेंगे। remember one thing. परंतु एक बात को याद रखना, The one who laughs last will laugh best. जो सबसे आखिरी मौका पाता है हंसने का, वही सबसे बेहतर होता है। Amen. Amen. The story is not ended. कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। David's guards become so wild, they said, give me a chance, we put off his head. और दाऊद के उसके जो साथ में कर्मी थे इतने गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा हमको अनुमति दे, हम अभी इसको यहीं पर मार डालेंगे। They would have done it. और वे लोग तुरंत उसका सर भी काट How do we react when people talk about us? जब लोग हमारे विरुद्ध में बात करते हैं, We हमारी have प्रति- power, we can do anything. हमारे पास ताकत है, अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते। कैसी प्रतिक्रिया? Anybody can say anything. कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कर सकता है, But a wise man will hold his peace. परंतु बुद्धिमान मनुष्य अपने मुंह को रोकता है, Leave it in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमेन। David said, दाऊद कहता है, let it be. इसे छोड़ दो। Maybe God has permitted him to speak. वो जो कोसता है, यहोवा ने शायद उसको ऐसा अनुमति दिया। What a spirit. कैसी आत्मा है। When he had all the power to bury him there in the sand. जबकि दाऊद के पास इतना अधिकार ताकत थी कि उसी वक्त वो शिमी को वहीं गड़ा देता, He did not say. लेकिन उसने ये नहीं कहा। Things changed. परिस्थितियां बदली। There was war between Absalom and David. अबसलोम और दाऊद के बीच में लड़ाई भी हुआ। Absalom died. अबसलोम की मौत हो गई। David returns back as king. दाऊद राजा बनकर वापस लौटा। Now what? अब क्या होगा शिमी का? Now what? अब क्या होगा शिमी का? I sometimes think कभी कभी मैं सोचता हूँ they should have added some more chapter कुछ in और the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में कुछ और अध्याय जोड़ना चाहिए था, because I'm still in question. क्योंकि अभी भी कुछ सवाल मेरे मन में रहते When हैं। Joseph came on the throne, जब यूसुफ सिंहासन में राजा बन गया मिस्र पे, what would have become of Potiphar's wife? तो पोतीफेर की पत्नी का क्या हाल हुआ होता? इतना तो कहीं लिख देते भाई हमारे। कहीं लिखा होता कि उसका क्या दशा थी उसके बाद। But these men were men of God. परंतु ये लोग परमेश्वर के जन थे। Vengeance is mine. परमेश्वर कहता बदला लेना, पलटा लेना मेरा काम है। He will take some time. वो कुछ समय लेता है। Amen. आमीन। He will take time. वो समय लेता है, Give him time. उसे समय दो। Hallelujah. आमीन Amen. आमीन। Now when David returns, अब जब दाऊद लौट के आया, Amen, तो है कि नहीं कि सो गए भैया तुम लोग? हम सब यही हैं कि आमीन। नींद आ गई। आमीन Amen. आमीन। When David returns, जब दाऊद लौट के आया, that we find in 19th chapter, जो हम 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 18th verse. 18 आयत में, It says like this. वहां ऐसा लिखा है, And there went over a ferry boat to carry over the king's household and to do what he thought was good. And Simei, the son of Gera, fell down before the king as he came over Jordan. और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यर्दन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा।
Listen, सुनिए, this man had some influence ये आदमी का कुछ प्रभाव था, because in verse 17 he says, क्योंकि 17 में लिखा है, there were 1,000 men of Benjamin with him. उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे. You know, this should have been in a Bible study. It's a very interesting portion. ये बाइबल अध्ययन के लायक बहुत ही रोचक भाग है ये. Ziba, the servant of Saul, also there. शीबा जो कि शाऊल का सेवक था, He was also a mischievous fellow. वो भी एक ऐसे ही नटखट और गड़बड़ी करने वाला आदमी था. Crafty man. चालाक पुरुष. He spoke lies for Mephibosheth उसने मपीबोशेत के बारे में झूठ कहानी राजा को सुना दी थी and got the property on his name. और पूरी संपत्ति वो अपने नाम कर लिया था. This is what people do. लोग ऐसा ही करते हैं. बूढ़े माँ बाप का अंगूठा ही लगवा लिए, बूढ़े माँ बाप का अंगूठा ही लगा लिए ऊपर से लीक हुआ, सब खराब हो गया. और ऊपर से लीक हुआ और सब स्याही मिट गई. पहले क्योरिंग कराना था. पहले घर का क्योरिंग ठीक से कराना था. Amen. आमीन. What you sow, you reap. तुम जो बोगे वही कटनी If you काटोगे. do that with your parents, your children will do with you. यदि आप अपने माता पिता के साथ ऐसे धोखा करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे. Amen. Now let's come to Simei. हम शिमी का क्या हाल हुआ देखें. He is influential man. He's got about 1,000 guys. प्रभावशाली व्यक्ति था, उसके साथ हजारों बिन्यामीनी थे. Now he comes and falls at the feet of David. वो आकर दाऊद के पांव पर गिर पड़ा. And the 16th verse says, और 19th verse, 19 में कहता है, and he said unto king, let not my Lord impute iniquity unto me, neither do thou remember which thy servant did perversely the day that my Lord the king went out of Jerusalem, that the king should take it to his heart. वो राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करे, और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे. For thy servant doth know that I have sinned, therefore behold, I come the first day, all my house of Joseph, to go down to meet my Lord the king. क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया. देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ. And one of those guys said to David, तब दाऊद के साथियों में से एक ने कहा, put his head off, क्या इसका वध करना नहीं चाहिए? because he spake against the anointed of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध में बोला था. Yet तो भी David spared him. दाऊद ने उस आदमी को प्राण दंड नहीं दिया. Verse 23. 23 आयत में, Therefore the king said unto Simei, thou shalt not die. And the king swore unto him. फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड नहीं मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई. But he did not forget. लेकिन वो उस बात को भूला नहीं. When David was old, जब दाऊद बूढ़ा हो गया, when he was dying, जब वो मर रहा था, he called Solomon. उसने सुलेमान अपने बेटे को बुलाया He said, listen, my son, और कहा, सुन मेरे बेटे, you are a wise man. तू बुद्धिमान है. Bless those people who have blessed us. उन लोगों को आशीष देना जिन्होंने हमें आशीष दिया है. Listen, my son, मेरे बेटे ध्यान दे, be careful of Shimei. और शिमयाई से सावधान रहना. He can change any day. वो कभी भी किसी दिन बदल जाता. Don't let his hair go, gray hair go, take him long life. उसके सर पर सफेद बाल बने ना रहने पाए, Because he cursed me that day. क्योंकि उस दिन उसने मुझे श्राप दिया. So you find that आप इस बात को भी बाइबल में पाते हैं. 1 Kings, पहला राजा 2nd chapter, और उसका दूसरा अध्याय 8th verse. और 8वीं आयत. Careful of Shimei, the son of Gera, how he cursed the king.
Now therefore, 9th verse says, hold him not guiltless. फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। फिर 9 में कहता, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। So what Solomon does, he calls him. सुलेमान क्या करता है? उसको बुलाता है। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? This is an interesting story. This is. बड़ा रोचक घटना है जो हुई थी। Should make a movie out of this. ये वाकई में एक मूवी बनाने लायक है। He calls him, come here. वो उसको बोलता, तू इधर आ। He said, listen, कहता, सुन, I know what you've done. मैं तुझे जानता हूँ। You are not going to cross over the brook Kidron. वो किद्रोन का जो नाला है उसके पार तू जाएगा नहीं, इसी पार रहेगा। Build a house घर तू बना ले and stay here और यहीं रह and live properly. और आराम से रह। But remember, परंतु याद रख, the day you cross over, जिस दिन तू उस नाले के उस पार चला जाएगा, you're gone. मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा। So he bows to Solomon वो सुलेमान के सामने झुका and he goes. और चला गया। He makes a house. वो घर बनाया। 3 years he stays there. 3 साल उस घर में शिमी रहा। Amen. 36 verses. 36 आयत में लिखा है, Solomon says to him, build a house in Jerusalem, dwell there, and the day thou cross the brook Kidron, you shall die. कहता, यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं नहीं जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। Listen, what happens? क्या होता है? After 3 years, 3 साल बीत जाते हैं। 2 of Shime's servants, slaves ran away. शिमी के 2 सेवक लोग भाग जाते हैं। And he came to know that they have crossed over and they've gone to the Philistine territory in और Gath. शिमी को पता चलता है कि वो किद्रोन नाले के उस पार फिलिस्ती क्षेत्र में चले गए हैं। So he saddles his ass and goes and gets them. वो अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए उस पार जाता है And brings them. और उनको लेकर आ जाता है। Solomon calls him again. सुलेमान राजा को समाचार मिला, वो उसको बुलाता है। I'll give you the reference, you can read afterwards. मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, बाद में से पढ़ लें। 1 Kings 2nd chapter, पहला राजा 2 अध्याय 39th verse, 42nd verse and 44 verse. 39, 40 और 44 आयत में, 42 to 44. 42 से 44 तक। And in 46 we read he is killed. और 44 में हम ये पाते हैं कि वो मार डाला जाता है। Now listen. सुनिए, Solomon calls him and says, what have you done? सुलेमान उससे आकर पूछता है कि तूने क्या किया? Did not I tell you not to go there? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू उसके पार नहीं जाना? You see how much you can give a person chance. देखिए आप कितना भी अवसर किसी व्यक्ति को दें, Chance after chance, chance after chance, chance after chance. मौके के बाद फिर मौका और फिर मौका, The end. लेकिन अंत। He tells one of his bodyguards, put his head off. वो अपने एक अंगरक्षक को बोलता है उसके सर को कत्ल करने, Story ends. और वहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। What did he get? उसे क्या मिला? Nothing. कुछ भी नहीं। If he had submitted to David, यदि वो दाऊद के समर्पण में रहता, he would have been a blessed man. वो एक धन्य आदमी हो जाता। Let God fight the battle. परमेश्वर को अपना युद्ध लड़ने The दो। scripture says, dearly beloved, avenge not yourself. और वचन कहता है कि अपने आप को प्रियो अपना पलटा ना लो, But rather give place to wrath, meaning let God do the job. परंतु क्रोध को अर्थात परमेश्वर को अपना काम करने दो। Romans 12 chapter 19th verse. रोमी 12 अध्याय 19th verse. और उसकी 19 आयत में, Beloved, avenge not yourselves, हे प्रियो बदला ना लेना, but rather give place unto wrath. परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। Let God do the job. परमेश्वर को वो काम करने छोड़ दो, For it is written, क्योंकि लिखा है, vengeance is mine, says the Lord. बदला लेना मेरा काम है, प्रभु I कहता will है, repay. मैं ही बदला दूंगा। Amen. आमेन। And Jesus said और यीशु ने कहा about the woman who came to the unjust judge and always pestered him, उस स्त्री के बारे में जो एक अन्यायी के पास आती थी और बार बार उसको सताती थी अपने न्याय के and लिए। he said, shall not God
avenge those who cry unto him day and night? तब यीशु मसीह ने यह कहा कि क्या परमेश्वर उनका बदला नहीं लेगा जो रात दिन उसे पुकारते हैं? Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। God must fight our battles. परमेश्वर हमारे लड़ाइयों को लड़ने And he पाए, will fight when we keep quiet. और वो तभी लड़ेगा जब हम शांत रहेंगे। Amen. आमीन। That's the difficult part. ये सबसे कठिन भाग होता Leave है। me, I'll go. अरे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। Hello. My pastor used to tell us. मेरे पास्टर बोला करते थे, There was one time, those days no phone calls, you know. उन दिनों में कोई फोन कॉल नहीं होता था। One person came and said to him, एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, come pastor quickly that my so and so wants to jump from the roof. पास्टर साहब जल्दी आइए, मेरे फलाना कोई रिश्तेदार, वो Lady, old lady. बूढ़ी महिला वो छत से कूदना चाहती है, Leave me, I'll jump. और वो बोल रही है मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को कूदने दो। So pastor goes, पास्टर साहब पहुंचे, pastor was also on cycle. वो भी साइकिल में थे, Where is it? He goes up. ऊपर छत में गए, Few people are holding her. कुछ लोग उनको पकड़ के रोके हुए थे, And she's saying, no, let me go. और वो कह रही थी मेरे को छोड़ो, मेरे को कूदने दो। Pastor said, leave her. पास्टर साहब ने कहा चलो उसको छोड़ दो, Kudo. जाओ कूदो। As long as they were holding, जब तक वो उसको पकड़े थे she was saying, I'll jump. तो कह रही थी मेरे को छोड़ो, कूदने दो। जब छोड़ दिया, जब छोड़ दिए कि कूदो, नहीं कूदी. फिर वो नहीं कूदी। Sometimes we want to go and attack. कभी कभी हम सोचते जाएं और हमला करें, आ जाओ तुम, आ जाओ तो सबको बुला लो, सबको बुला आमने सामने करो. आमना सामना करो। That's not biblical pattern. ये बाइबल का तरीका नहीं है। Leave it in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में अपनी तकलीफ छोड़ दें। Hallelujah. आमीन। We are not called to negotiate with the devils, हमें- evil spirits. दुष्ट आत्माओं के साथ समझौता या वार्तालाप करने नहीं बुलाया गया है। Negotiate with them. उनके साथ में किसी प्रकार से सहमति करने नहीं बुलाया गया। Bring about a solution to talking to the evil spirits. दुष्ट आत्माओं से बात करके कोई हल निकालने नहीं बुलाया गया। God has not called us to do that. परमेश्वर ने ये करने हमें नहीं बुलाया है। Precious hours are wasted बहुत बहुमूल्य घड़ियां बर्बाद होती हैं trying to solve spiritual problems carnally. आत्मिक समस्या को शारीरिक तौर से हल निकालने का जब हम प्रयास The करते हैं, best of our reasoning, हमारी बेहतरीन अपनी बुद्धि और हमारा तर्क, logic, हमारा तार्किक शक्ति or convincing power और हमारा लोगों को आश्वासित करने की ताकत, will not be able to change the situation a little bit. ये सब बातें मिलकर परिस्थितियों को बदलने में कामयाब नहीं होगी। Only the Holy Ghost can do that. केवल पवित्र आत्मा ही उस काम को कर सकता है। Hallelujah. Amen. This is His church. ये उसकी कलीसिया, He knows what to do. वो जानता है क्या करना है। Holy Ghost is the answer. पवित्र आत्मा ही हर एक समस्या का उत्तर है। He is the one who should reign. वही है जो राज करे। When He speaks, जब वो बोलता है job is done. तब काम हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Look at Jesus. यीशु की को जरा देखें। Peter writing in his epistle says, पत्रस अपनी पत्री लिखकर क्या बोलता है? we'll close with this. हम इस वचन के साथ बंद करेंगे। 1 Peter 2nd chapter, पहला पत्रस 2 अध्याय 21-23. 21 और 23। For even hereunto we are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Who did no sin, neither was guile found in his mouth. ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। Who when he was reviled not again. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him that judgeth righteously. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। Amen. आमीन। Leave it प्रभु के हाथ में सौंप दें, in the hands of God. परमेश्वर के हाथ में।
Hallelujah. हालेलुया। You might lose your case in Supreme Court. हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी आपका सही मामला आप हार जाए, But there is another court in heaven. लेकिन उसके बाद भी एक कोर्ट है जो स्वर्ग का, वहां से न्याय आता है। Leave it in his hand. उस न्यायी के हाथ में अपना मामला सौंप दो। Amen. आमेन। If Jesus could do that, यदि यीशु ऐसा कर सकता था, one time he told his disciples, एक बार यीशु ने अपने चेलों से कहा, they said, shall we strike with the sword? जब उन्होंने कहा हे प्रभु, वो तलवार से मारने के बारे में, He said, उसने कहा I can just now call for 12 legions of angels. मैं अभी यहाँ पर स्वर्गदूतों की 12 पलटन बुलवा सकता हूँ, Which my Father will send immediately. जो मेरा पिता तुरंत अभी यहाँ पर भेज देगा। 1 legion, 6,000. एक पलटन में 6,000 सैनिक, 72,000 angels. 72,000 स्वर्गदूतों का समूह, One angel could kill 1,80,000. और एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मारने की काबिलियत रखता था। यदि Can I not do that? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? For this hour I have come लेकिन मैं इसी घड़ी के लिए तो आया हूँ, to do your will, O God. परमेश्वर तेरी मर्जी को पूरी करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Commit your problems to God. अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताएं। Who is that who opposes you? कौन है जो आपका विरोध करता है? Don't fight in your own strength. अपनी ताकत में उससे ना लड़े, Take it to the Lord in prayer. प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख रख दे। Hallelujah. हालेलुया। And you find और आप पाएंगे victory will be yours. विजय आपकी होगी। Amen. Amen. The same men, वही मनुष्य लोग, same people वही लोग who were against you, जो आपके विरोध में कभी थे, God will cause them to bow down before you. परमेश्वर उनको आपके सामने झुकने के लिए बाध्य करेगा। And you will know और आप जानेंगे heaven rules. स्वर्ग हुकूमत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Heaven rules. स्वर्ग हुकूमत करता है। It's not by your power, not by mine. वो आपके और मेरी सामर्थ्य से नहीं है, It's by the power of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसा होगा। This church and every church belongs to Christ. ये कलीसिया और हर एक कलीसिया मसीह यीशु की है, He's the head. वही उसका सिर है। Let him do the job. वो उसको अपना काम करने दो। Shall we say, आइए क्यों ना हम कहें, have thine own way, Lord. प्रभु तू अपनी मर्जी पूरी होने दे। Have thine own way. तेरी मर्जी पूरी हो। You are the potter, I am the clay. तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ। You can do all things. तू सब कुछ कर सकता You है। can take away the kingdom. तू राज्य भी ले सकता, You can give back the kingdom. तू राज्य वापस दे सकता है, You can spare your enemies. तू अपने दुश्मनों को बख्श सकता है। Merciful God. तू करुणा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Thank you, हालेलुया। Jesus.